मतलब करंट डेंसिटी किसके बराबर होती थी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, वो दैट इज ऑल गिवन बाय इन दिस आर्टिकल, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट वन, ठीक है सर। जी जी बेटा। सर रिकॉर्ड भी साथ साथ ही लगा। अच्छा ठीक ठीक। This meeting is being recorded. अच्छा बेटा जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दें, देयर वर 63 students, 64 students before the end of the class and now there are 57, so I think it will take some time. 2 बजे आपकी क्लास तो नहीं है बेटा? सर इस्लामियत की क्लास है? यस, जी सर इस्लाम की क्लास 2 से 4। अच्छा चलें बेटा। ओके सो बेटा यहाँ पे इन दिस सिनेरियो दे हैव टेकन दी जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड बेटा, एक सेकंड। No, this is the strip they have taken here. ठीक है, the current is passing in the downward direction while the magnetic field is into the paper. So if you will see the direction of the magnetic force, ठीक है, on this charge particle, ठीक है, it would be in the right direction. So when it would, एक सेकंड बेटा, in the downward direction क्या है जी, magnetic field है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड आपको एग्जैक्ट बताएं किस डायरेक्शन में है। सो यू आर गेटिंग दिस हेयर, दिस फिगर हेयर, ठीक है, और एक सेकंड थोड़ा सा ना, समटाइम्स the current is in the downward direction, okay, so this is the drift velocity of the charge particle, positive charge particle, which is in the downward direction. Magnetic field is into the paper, so what would be the direction of the magnetic force? Obviously the direction of the magnetic force is in the right direction, okay, so the positive charges will accommodate here, while the we do know that for the negative charges the direction is in the opposite direction, so obviously negative charges will come by here, so there is a potential difference between the positive charges and that of the negative charges, so there is a Hall potential, so this is the Hall potential, so you are getting this figure, is it clear to you beta? ये ट्राई कर लें एक दफा हाथ यूज करते हुए कि आपके हाथ पे यही बन रहा है, आप इसको थोड़ा सा टिल्ट इस तरह कर लें कि जिस तरह मैंने फिगर बनाई थी उस तरह इसको टिल्ट कर लें, देन इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यानी मैंने अगर इसको टिल्ट कर लिया है, इसको मैं यहाँ पे ले गया हूँ, तो डायरेक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस वन, सो करंट वुड बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और अगेन in this direction magnetic field is into the paper, so obviously तो आपकी फोर्स लग रही होगी that would be in the upper direction, so is it clear to you beta, is this figure clear to you? Yes sir. जी जी सर। क्योंकि वो जिस जिस तरह ये फिगर दी है थोड़ा सा हाथ टेढ़ा करना मसला होता है, ठीक है, so again on the upper end they are using the negative charge particle, you can see here for the negative charge particle the direction of the charge particle is in the upper direction, ठीक है, ये करंट डाउनवर्ड है लेकिन आपका जो they are taking the negative charge particle है, so negative charge particle is obviously in the upper direction, क्योंकि कन्वेंशनल करंट हम पॉजिटिव चार्जेस का लेते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, सिंस वी आर टेकिंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, सो obviously charge particle would be in the upper direction, so for that purpose आपकी डायरेक्शन थोड़ी सी इनवर्स है, so make it clear के on the first two figures they are taking the negative charge particle, on the C side figure they are taking the positive charge particle, is it clear बेटा? तो वो कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ऊपर उन्होंने क्यों नेगेटिव एक साइड पे दे दिया है और नीचे क्यों पॉजिटिव दे दिया है, ठीक है जी सर क्लियर, ठीक हो गया। सो अब ये है कि उन्होंने ये डिफ्लेक्शन सारी, अब ये तो समझ में आ गई है आपको कि
why they have in this whole figure, ठीक है, they have taken, they discuss about this one, and then this is the potential difference that has been created due to the positive charge carriers and the negative charge carriers on the upper end and the lower end of the strip, which would be equal to V is equal to ED, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उन्होंने वही डिस्कशन की है कि आपके पास QE is equal to QVB, QE से Q we are taking the electron here, so QE means कि उन्होंने चार्ज ले लिया यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव का भी वही है और नेगेटिव का भी वही होता है। ई ले लिया और ई से कैंसिल हो गया। VD किसके बराबर होता है? J ओवर N। ये इन्होंने इक्वेशन जो है ड्राइव की हुई है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स आउटलाइन। इक्वेशन ड्राइव की हुई है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो J आपके पास जो है इट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी I ओवर A के बराबर है। सो इन्होंने ये पुट कर दी VD की वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो यू कैन आल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। और यहाँ से आपके पास ये सारी रिलेशन हॉल इफेक्ट की आ गई है, ठीक है। ये डेंसिटी जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं यू कैन फाइंड आउट बाय दिस रिलेशन है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होती है कि द वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन द कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ तक बेटा इस चीज की समझ में आ गई है कि नहीं आई? सर ये स्मॉल ई कब लगेगा? तो स्मॉल ई इज बेसिकली चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज है बेसिकली, व्हिच इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। ओके सर। सो QE Q की जगह इन्होंने ऑन बोथ साइड्स दे हैव रिटन एज ए चार्ज, तो इवन आप Q भी लिख लें इट विल नॉट मेक ए डिफरेंस देयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके बराबर आ गया और बस देन ऑनवर्ड यही है। बाकी आगे आप एग्जांपल करेंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। क्लियर हो गया अप टू दिस पॉइंट के व्हाई दे हैव टेकन, बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फोर्सेस बिकम बैलेंस, so QE is equal to QVB or small e into capital E is equal to small e VDB. VD is basically drift speed है which is equal to this one, और J जो है current density है I over A के they have just put the value of VD in this equation, ठीक है। और then the final answer that you will get is equal to this one. From this equation you can get the number of the charge particles है, number density of the charge carrier। जी जी बेटा। सर जी बच्चा वेट कर रहा है, उससे जी जी क्लास में। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, सॉरी बेटा मैं ये पढ़ा रहा था। सो अप टू दिस पॉइंट बेटा क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट बेटा? नो सर। No, sir. ठीक है, Clear अब है, आ sir. जाए जरा एग्जांपल की तरफ ना। एग्जांपल से यू विल गेट ए क्वाइट क्लियर आंसर, ठीक है। टाइम हो तो नहीं क्या अभी आपका? No, sir. कहते कि And this in chapter. this case के figure अच्छा ठीक है बेटा। In this case you have a figure कहता है shows a metal cube. This is the metal cube, ठीक है, of h length। एक साइड की जो लेंथ है आपकी it is equal to 1.5 centimeter moving in the positive y direction, ठीक है। ये पॉजिटिव y डायरेक्शन यहाँ पे आपके पास इन दी अपर डायरेक्शन में है, ठीक है जी। और with a velocity of 4 meter per second, ठीक है। the magnitude of the magnetic field is along the क्या आपके पास z axis है which is equal to 0.50 टेस्ला, ठीक है। आपने क्या करना है which q phase is at lower electric potential and which is at the higher electric potential because of the motion through the field। पहले तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। एक सेकंड बेटा मैं एडमिट कर लूं, एक सेकंड बेटा मुझे दीजिएगा, इसको प्रॉपरली थोड़ा सा फिगर को एक्सप्लेन करना। अच्छा, कह रहा है कि आपके पास एक मेटल क्यूब है, दिस इज द मेटल क्यूब, ठीक है जी।
और इसकी डायमेंशन जो है ईच साइड की इट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. सो इट इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, मीनिंग दैट इट इज मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस. और ठीक है, इट इज पासिंग अगेन आल्सो कंसिस्टेंटली पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज अलोंग द z एक्सिस. z एक्सिस आपके पास ये है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये आपके पास y एक्सिस है जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है इन द अपर डायरेक्शन. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.050. अब कहते हैं कि क्वेश्चन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच क्यूब फेस, यानी इसके फेसेस हैं जो सारे, इसमें से कौन सा क्यूब का जो फेस है वो एट लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और विच इज एट द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द मोशन थ्रू द फील्ड. कि जब आप मूव कर रहे हैं, मोशन इसकी हो रही है, तो वो लोअर पे कब है और हायर पे कब है. ठीक है, तो ये आप बता देंगे या मैं ही बताऊं आपको? क्या कहते हैं? सेकंड वाला ऑप्शन अच्छा है. सेकंड वाला अच्छा क्वेश्चन. अच्छा, अब तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द चार्जेस हियर. सो हाउ, मतलब अब कैसे यार, उसने कह दिया एक मेटल सॉलिड ट्यूब है, ठीक है, सो इट इज मूविंग थ्रू द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्जेस तो है ही नहीं. सो हाउ वी कैन से कि इट इज एक्टिंग एट ए लोअर, वन वुड बी एट लोअर पोटेंशियल, अदर वुड बी एट हायर पोटेंशियल. कैसे कैसे उसने कह दिया? तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से होते हैं. जी बेटा, सर मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की बात. मेटल्स के अंदर फ्री बैंड फ्रॉम मेटल. obviously he specifically asked for a solid metal cube. He used a word solid metal cube. So obviously the answer is right, that there are free electrons in a metal that will affect. ठीक है. अच्छा, अब no there are, अब it means कि when it means that electrons are moving in the upper direction because cube is moving in the upper direction. ठीक है, cube is moving in the upper direction, so it means that electron is moving in the upper direction. क्लियर हो गया आपको ये चीज? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गई बेटा कि electrons will move in the upper direction. ठीक है, and while जो आपके पास magnetic field है, the direction of the magnetic field is this one. So magnetic field is toward us, यानी आपकी तरफ होगी. 3 dimensions, and 3 dimensions magnetic field will be toward you, यानी out of the laptop होगी या out of the mobile होगी, और जो velocity of the charge particles होगी that would be in the upper direction. So thumb will give you the direction of will give you the velocity of the charge particle which would be in the upper direction, और magnetic field क्या होगी? It would be toward me. ठीक है, तो what would be the direction of the magnetic force? क्या होनी चाहिए? राइट साइड पे. Right side पे. But the problem is that since we are talking about the metal cube, so there is the only one type of the charge carrier, that is the electron. So electron would be क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन पे. Opposite direction. So on the left side जो होगी आपके पास क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. So ये चीज समझ में आ गई आपको? Yes, sir. नहीं आई? नहीं आई Again, सर. नहीं आई. Take your finger, right hand palm, ठीक है, fingers will be in your direction, ठीक है, palm की direction क्या होगी? That would be in the right side, और thumb की direction in the upper direction. क्या ये कर लेंगे आप? जी Yes, सर sir. कर लिया. कर लिया. So what is the
डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फॉर द नॉर्मल जो है, नॉर्मल ऑफ द पाम वुड बी इन द राइट डायरेक्शन, यही नहीं होगा? जी सर। So for the positive charge carrier, the answer would be okay, it would be in the right direction. But since we are talking about the metal cube, so in metals there are only one type of charge carriers, that are electrons. So it will be in the opposite direction. So the magnetic force on that charge particle will be in the left direction. So this is the left direction here they have mentioned here. So this would be, यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर, so this is the negative charge carriers would be in this direction, the force would be in this direction, so lowest potential would be on this side. ठीक है, अब क्लियर हो गया? जी सर। चलो अब आ जाते हैं टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन कि आपके पास क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फेसेस ऑफ द हायर एंड द लोअर पोटेंशियल, कि एक्चुअल मैग्नीट्यूड क्या है उस वैल्यू का. सो वी विल यूज दिस रिलेशन, ठीक है, QE is equal to QVB, ठीक है, फ्रॉम हेयर वी विल टेक E is equal to VB, ठीक है जी. ये रिलेशन हम लोगों ने जो है, Q will cancel out, E would be equal to VB. V किसके बराबर होता है? ED के. सो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा कि आप यहाँ से E की वैल्यू पुट करेंगे विच वुड बी इक्वल टू V over D. तो आप जब ये वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर V over D के, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा? V is equal to VBD है. इज इट क्लियर बेटा कि नहीं समझ में आई? क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन? क्या शुड आई रिपीट इट? सर एक बार रिपीट कर दें. Simple is that के obviously after some times the two charges, मतलब positive charges and that of the negative charges, they will balance out. Negative charges से मुराद ये है कि lower concentration of electrons होगी on the one end and higher concentration of the electrons at the other end. ठीक है, so QE, और फिर क्या होगा कि आप since नहीं sorry it's my fault, गलत बात कर गया हूँ मैं. एक सेकंड बेटा, just I have to repeat it. On this end there are the electrons that are getting here. This is the negative electrons. So magnetic force is basically moving the electrons in this direction. After some times the Coulomb force of repulsion become equal to the QVB. So this Coulomb force of repulsion क्या होगी? जब equal हो जाएगी, there will not be movement of more negative electrons toward this end. So at that time QE will be equal to QVB. ठीक है, सो QE जब QVB के बराबर हो जाएगी, यहाँ पे QE will be equal to QVB. सो E is equal to, हम लोगों ने जब वेलोसिटी सिलेक्टर लास्ट आर्टिकल पढ़ा था इन क्रॉस फील्ड्स, so at that time what we have derived ke V is equal to E over B. So in that scenario V was equal to E cross B. So E किसके बराबर हो जाएगा? V B के. Also we do know, ये एक आपने रिलेशन याद रखनी है, ठीक है, और also आपके पास we do know that V किसके बराबर होता है? ED के, ठीक है. तो एक सेकंड बेटा, E is equal to V by D के, ये चीज है बेटा. सो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन बनेगी, सॉरी ये भी है और ये कैंसिल आउट हो गए, और ऑन द टॉप रिलेशन हम लोगों ने ये पुट करनी है. यार एक सेकंड बेटा. So this relation will become something like E is equal to VB,
ठीक है. So we do know that potential is equal to ED और E किसके बराबर हो जाएगा? V by D के. So I will put the value of the E in this equation in the top. ये वाली equation में मैं put करूँगा. So the answer would be something like V by D equal to VB और किसके बराबर हो जाएगी? V would be equal to VBD. समझ में आ गई बेटा ये रिलेशन कैसे आई? सर कंफ्यूजन में चले Yes, sir. Okay, fine. The thing is that Q will cancel out and this relation will become E is equal to VB. But we know that potential is equal to AD. ये FSC में आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है. और from here I got the value of E which would be equal to V by T. I will just put the value of E in this equation. So this equation will become V by D is equal to VB or potential would be equal to B into D. अब clear हो गई है? Yes, sir. Okay. अब आ जाते हैं बेटा हम लोग. This question we got this question. Velocity was 4 meter per second. B was 0.050 Tesla and the dimension was 1.5 centimeter. So in meters it is, after converting it into the SI units, this relation it will be equal to 0.015 meter. So our relation will be equal to this one. Clear हो गया बेटा? जी सर. चलें आज के लिए जी काफी सर. है इतना कि नेक्स्ट आर्टिकल करें. यस सर, बेस्ट है आज के लिए. यार बहुत स्लो समझाने में मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ बेटा. नहीं सर, स्लो स्टडी विंस द रेस वाला काम सही है. चलें अल्लाह मियां बेहतर करें. अल्लाह करे लंबी हो जाए आपका सेशन. मीन और ऑनलाइन एग्जाम्स हो जाए. चले बेटा अल्लाह मियां बेहतर करें. तो चलें बेटा ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए. कल फिर इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है बेटा? इंशाल्लाह सर. अप टू दिस पॉइंट एनी क्वेश्चन? सॉरी मैंने पूछा नहीं. किसी का क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट बेटा? नो सर, साथ क्लियर कर लिए. ठीक है बेटा. चलें ठीक है, गुड बेटा. ओके बेटा, फिर अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.